Hello class, good afternoon all. In the last video we have started chapter 3, that is admission of a partner in class 12 accountancy. In the last video we have studied the reconstitution of the partnership firm occur due to the various reasons. The very first reason is there is a change in the PSR among the partners, there is an admission of a partner, there is retirement of a partner, there is the death of a partner, and there is an amalgamation between two partnership firms. When there is a reconstitution, we have to make necessary adjustments, right, in a partnership firm. So we are studying the admission of a partner. There were two reasons, or can be more reasons, due to which a partnership firm has to admit a new partner, due to the shortage of fund, or due to the skills, lack of skills, or incapabilities. So there can be so many reasons due to which a partner is being admitted in a partnership firm. And when the new partner enters the partnership firm, he acquired two rights, right? The very first right he acquired, that he acquired the right on the assets of the firm. And the second is he acquired the right on the profits of the firm. The new partner has two rights on being admitted into the partnership firm. The very first one is he acquired the right on the assets of the firm, and he acquired the right on the profit of the firm, right? And the new partner is also known as incoming partner. When the new partner enter in an organization, in a partnership firm, then we need to calculate what? The very first thing we need to calculate is the new profit sharing ratio, right? How the profit will distribute it among the partners, among all the partners, including old and new partners. And the second thing, we have to calculate the sacrificing ratio. Because when the new partner is being admitted to the organization, the existing partners have to sacrifice their profit of share, right, to the new partner. So these are the two things which we have already discussed in the last video. Right. Now, in this video, we'll cover the treatment of the goodwill. First of all, we need to understand the goodwill. Let's take an example. Suppose there are two restaurants. Both the restaurants are selling the same products, right? But होता ये है कि एक रेस्टोरेंट की सेल इज वेरी हाई और अनदर रेस्टोरेंट की सेल इतनी हाई नहीं है। एक रेस्टोरेंट का बंदा इतना बिजी है, ओनर, वहाँ पे एम्प्लॉइज इतने बिजी हैं कि उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। और दूसरे वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा वाला जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बंदे कम आ रहे हैं, वहाँ पे कस्टमर्स कम आ रहे हैं। वाई इट इज सो? दिस इज बिकॉज एक बंदा बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है, एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छी क्वालिटी के फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहा है, और देयर रेट्स में बी वेरी रीजनेबल, और देयर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग विल बी वेरी कमेंडेबल, राइट? तो इसकी वजह से उसकी सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी मार्केट में गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यही गुडविल है। तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, जो ज्यादा वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, वो ही उसकी गुडविल है। दूसरा फर्म, उसकी गुडविल उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि उसने अच्छी सर्विसेज नहीं दी हैं, उसकी क्वालिटीज इतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से उसकी गुडविल कम है और उसकी प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। दिस इज द गुडविल। नाउ द गुडविल जो है आपका, उसकी वैल्यूएशन हमने पढ़ लिया है कि भाई जो चार तरीके हैं, चार मेथड्स हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वेरी लास्ट वीडियो इन द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ जो गुडविल है आपका, देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप्स एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शंस। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी है तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। और अकाउंटिंग में ही मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज, ऐसा एडवांटेज जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वही मॉनेटरी वैल्यू को गुडविल बोला जाता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से जो है गुडविल की ट्रीटमेंट हमें समझनी जरूरी है। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 26 के हिसाब से गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक है परचेज्ड गुडविल और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए, दो रेस्टोरेंट थे, एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था, एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। तो जो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा था, जिसकी गुडविल बहुत ज्यादा थी, उसके पास टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 20 lakhs के थे, राइट, सपोज। उसके बाद मैं उनसे अगर उनके बिजनेस को खरीदना चाहती हूँ,
तो उन्होंने बोला कि हम आपको 30 lakhs में अपना पूरा रेस्टोरेंट सेल करेंगे, बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि दे हैव एन एसेट एंड लायबिलिटीज वर्थ 20 lakhs only, but they will sell that restaurant to me at 30 lakh। जो 10 लाख रुपए वो मुझसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, वो उनकी गुडविल के ले रहे हैं वो, क्योंकि जब मैं उनका रेस्टोरेंट परचेज कर लूंगी, खरीद लूंगी, तो वहां पे जो प्रॉफिट मैं कमाऊंगी एक्स्ट्रा, वो उनके फर्म की गुडविल की वजह से कमाऊंगी। तो इस वजह से वो 10 लाख रुपए जो मुझसे एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं, वो गुडविल की है। इस केस में ये जो गुडविल मैंने परचेज की उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस रेस्टोरेंट की, दैट विल बी योर परचेज गुडविल, राइट। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम खुद से काम करके बनाएंगे। जब मैं उस बिजनेस को खरीद लूंगी और फिर मैं वहां पे और ज्यादा चीजें, सर्विसेज ऐड ऑन कर दूंगी, वहां पे और ज्यादा मेरे कस्टमर्स में वहां पे अट्रैक्ट कर पाऊंगी। मेरे रेस्टोरेंट में अगर एक से मैंने 2 रेस्टोरेंट ओपन कर दिए, उसके 2 ब्रांचेस मैंने ओपन कर दिए, तो ये दिस वुड बी माई सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो मैंने खुद से बनाई हुई है। Now, what is the difference between purchased goodwill and self-generated goodwill as per the accounting standard 26? देखिए, जो purchased goodwill होती है, it has to be accounted in the books and it has to be shown as an asset। इसको आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है, एज एन एसेट दिखाना है, ठीक है। और जब आप इसको एज एन एसेट दिखाएंगे तो आपको इसको राइट ऑफ भी करना होता है। इट शुड बी रिटन ऑफ इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। जो भी आपकी बुक्स में दिखाई हुई गुडविल होती है, उसको आपको विद इन 10 ईयर्स राइट ऑफ करना होता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर फर्म का आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी जो 5 केसेस मैंने आपको बताए थे, उस टाइम पे अगर आपकी कोई परचेज गुडविल थी जिसको आपने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, तो आपको उसको भी राइट ऑफ करना पड़ता है। नाउ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, आपकी बुक्स में अकाउंटेड नहीं होती है, ना ही आपकी एसेट की तरह ट्रीट होती है। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। इसको आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो, बल्कि इसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। और उस एडजस्टमेंट एंट्री को कैसे पास करना है, इसको हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इनकमिंग पार्टनर है, उसको 2 राइट मिलेंगे जब वो पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री मारेगा। पहला राइट तो उसको ये मिलेगा कि ही विल हैव राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, एंड द सेकंड थिंग कि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अब जो नया पार्टनर है, उसको एसेट्स पे अपना राइट चाहिए, उसके लिए तो वो कैपिटल लेके आता है, ठीक है। और जब उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा चाहिए, यानी जो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसमें भी अगर उसे हिस्सा चाहिए, उसको राइट डेफिनेटली मिलेगा। तो उसके लिए उसे कुछ गुडविल लेके आना पड़ता है। क्यों लेके आना पड़ता है गुडविल का कुछ अमाउंट? क्योंकि जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है, वो गुडविल की वजह से कमा रही है। तो अगर उस प्रॉफिट में नए पार्टनर को भी हिस्सा चाहिए, तो उसको गुडविल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, जो पार्ट ऑफ गुडविल वो लेके आएगा कैपिटल के साथ, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह पे आपको ये प्रीमियम फॉर गुडविल एज अ गुडविल भी मिल सकता है, बट वो प्रीमियम फॉर गुडविल ही होगा। बात वही है जो नया पार्टनर लेके आया, वेदर इट इज रिटन एज गुडविल और इट इज रिटन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए, the incoming partner who acquire a share in the profit of the firm from the existing partners brings in additional amount to compensate them for the loss of their share in the super profits, right? It is termed as his share of goodwill. It is also called the premium for goodwill, ठीक है। वो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, और वो नया पार्टनर गुडविल क्यों लेके आ रहा है? वो उनको कंपेंसेट करेगा उस गुडविल से जिन पुराने पार्टनर्स ने, जिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। और ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, ये आपका परचेज्ड गुडविल नहीं होता है, ये आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, और इसकी वजह से इसको आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता है, और इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं अब हम। द वेरी फर्स्ट केस इज जब आपका नया पार्टनर आ रहा है फॉर्म में, ठीक है। जब वो फॉर्म में आएगा तो आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन चारों में से किसी भी एक मेथड का यूज करके पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, और उस गुडविल में से नए पार्टनर को अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे, उसको लेके आना है, ठीक है। जो अमाउंट प्रीमियम का अमाउंट नया पार्टनर लाएगा, उसको क्योंकि हम उसे बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। और एडजस्टमेंट एंट्री हमें ये पास करनी पड़ती है कि वो जो गुडविल नया पार्टनर लेके आता है, उसको हमें फर्म की बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, बल्कि हमें उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है।
If this amount is paid to the old partner directly, अगर आपको कभी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि भाई नए पार्टनर ने प्राइवेटली पे कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को अपने हिस्से का गुडविल या अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसके लिए हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में बुक्स में फॉर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। लेकिन अगर ये बोला गया कि अमाउंट इज पेड थ्रू द फर्म विच इज जनरली द केस, जनरली यही होता है कि जो नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अपने हिस्से का लेके आ रहा है वो जो है किसी फर्म के थ्रू लाता है, अपने फर्म के थ्रू लाता है, और फर्म क्या करती है उसको पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को जिन्होंने उसके उस नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है उसको दे देती है। एंट्री कैसे होती है, वो कैश में लेके आता है गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन एज पर द रूल ऑफ द रियल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमें यहाँ क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एज एक लायबिलिटी की तरह हो जाता है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किन के बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि ये गुडविल किसके लिए लाया है, ये गुडविल लाया ही उन पार्टनर्स के लिए है जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, तो ये बटेगा भी किस में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे, अगर सपोज कीजिए एक फर्म है, वहां पे 3 पार्टनर थे पहले से ए बी सी और डी आया। डी के आने के टाइम पे जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट टू नो कि सिर्फ ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है और सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है डी के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा बिकॉज सी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द न्यू पार्टनर। राइट, आगे चलते हैं। देखिए, एक तो ये तरीका हो गया आपका, आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के पीछे 1-2 सालों के एनसीईआरटी में कई जगह पे जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है ना उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा गया है, कई जगह पे उसको गुडविल लिखा गया है, और कुछ जगहों पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट किया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अमाउंट वही आएगा जो नया पार्टनर एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल एज अ पार्ट ऑफ गुडविल लेके आया है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। राइट, उसके बाद जितना भी अमाउंट ऑफ गुडविल नया पार्टनर लाया डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ध्यान रहे जब आप एनसीईआरटी करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह पे उन्होंने एग्जिस्टिंग पार्टनर यूज किया होगा, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब वो एग्जिस्टिंग पार्टनर जिन्होंने नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है वो ला ही किसके लिए रहा है, जिन पार्टनर्स ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ये 2 एंट्रीज तो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। जब हमने यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्म अपने पास नहीं रख रही है, नए पार्टनर जो गुडविल लेके आया उसको फर्म ने अपने पास नहीं रखा है, फर्म उसको क्या करी है, पुराने पार्टनर्स में जिन्होंने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर पुराने पार्टनर्स उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से हमें एंट्री पास करनी पड़ती है, एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर आप बोल सकते हो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइट, बिकॉज दे आर द रिसीवर, वो उस गुडविल का अमाउंट जो उनको अलॉट हुआ था, जो उनको मिला था नए पार्टनर के लाने पर, वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट, अब आगे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। Vijay and Sanjay are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Ajay into the partnership. Ajay is the new partner which has been admitted in the partnership firm for 1/4 share, right? And Ajay brings 30,000 for his capital and the requisite amount of premium in cash. कितना अमाउंट लाना है अभी हमें नहीं पता। टोटल गुडविल वैल्यूएशन हुई है 20,000 रुपए की गुडविल वैल्यूएशन हुई है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द अजय। The new PSR is 2:1:1. Vijay and Sanjay withdraw their share of goodwill, give the necessary journal entry. First of all, what we need to understand is कि Ajay will bring how much amount of the goodwill, because the total value of the goodwill of the firm is the 20,000 and Ajay's share is 1/4. So Ajay will bring 1/4 of rupees 20,000. This is 5,000 as his share of premium, right? And the sacrificing ratio you will calculate, and when you will calculate you will get 2:3 will be the sacrificing ratio, right? Because we have given the old ratio and we are also given the new ratio, so we'll calculate the sacrificing ratio. The formula of the sacrificing ratio will be old ratio minus new ratio.
Then we have to pass the necessary journal entries. The very first entry is that कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कैपिटल लेके आया वो और जो गुडविल लेके आया वो, उसके लिए आपको एंट्री पास करनी है, और उसके बाद उस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको एडजस्ट करना है पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद उन्होंने जो प्रीमियम फॉर गुडविल था उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उसके लिए आपको एंट्री पास करनी है, राइट। तो अभी हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. Ajay is bringing 30,000 as his capital and 5,000 as a premium for goodwill which we have discussed earlier, right? तो ये हम अजय दो चीजें लेके आया, उसकी हमने एंट्री पास कर दी. उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल अजय लेके आया था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो आप. दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3. तो 5,000 हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2:3. 2,000 एंड 3,000 आ गया. विजय और संजय को 2,000 रुपए और 3,000 रुपए देंगे 5,000 में से, ठीक है. उसके बाद विजय और संजय ने उस गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ भी किया है, तो अगेन देयर विल बी एन जर्नल एंट्री दैट विल बी विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, right? This would be the three entries at the time of the admission of a partner about goodwill. Okay. Now we move to the next case. अब देखिए नेक्स्ट केस ये है कि अगर ये नया पार्टनर तो आ रहा है, गुडविल वैल्यूएशन उस टाइम पे हो रही है, और उस टाइम पे हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है कैलकुलेट करी, और हमने उसमें बोला कि नए पार्टनर को यू हैव टू ब्रिंग दिस मच अमाउंट ऑफ द गुडविल. अब एक केस हमारा ये है कि अगर पहले से बैलेंस शीट में कोई गुडविल है, तो अब बैलेंस शीट में अगर पहले से कोई गुडविल है तो वो कौन सी गुडविल होगी, वो गुडविल है आपकी परचेज गुडविल जो ऑलरेडी आपको बुक्स में दिखाई हुई है. तो परचेज गुडविल के लिए मैंने क्या बताया कि वी हैव टू राइट ऑफ द परचेज गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, और वी हैव टू राइट ऑफ द परचेज गुडविल, और गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ बुक at the time of the reconstitution of the firm. So journal entry would be old partners capital account debit because that goodwill belongs to the old partners, right? Because वो उन्होंने कमाई थी. तो old partner capital account debit to goodwill, goodwill account debit हो credit हो जाएगा यहाँ, और ये जो हम goodwill बांटेंगे existing goodwill को पुराने partners में, ये हम बांटेंगे old ratio में. Okay. इसके बाद हम चलते हैं next case पे. When the new partner does not bring goodwill in cash. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल और गुडविल को कैश में लेके आ रहा है, बट देयर में बी द केस जब नया पार्टनर के पास इतना कैश नहीं है कि वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों को कैश में लेके आ सके, तो उसने गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाया. उस केस में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा माइनर सा चेंज हमें ये करना है कि जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं वहां पे हमने उस पर्टिकुलर न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है, right, with the amount of the goodwill that he is supposed to bring out. Okay. इस केस स्टडी को हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट केस आपका ये है कि जब पार्टनर गुडविल का जो अमाउंट है उसको पूरा कैश में नहीं लाता है, आधा लाता है कैश में, ठीक है, कुछ पार्ट कैश में ले आता है वो. Sometimes the new partner brings the part of the premium for goodwill in cash. In such a situation, the new partner's current account will be debited by the amount not drawn. Suppose कीजिए उसको 10,000 goodwill लेके आनी थी नए पार्टनर को, 8,000 तो वो कैश में ले आया, but 2,000 he could not bring in cash. तो entry would be पहले तो भाई वो जितना कैश में लाया उसकी एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट, 8,000 से. अब दूसरी एंट्री, भाई पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको तो 10,000 पूरा मिल जाएगा, बट 8,000 कैश में मिलेगा और 2,000 रुपए उसके करंट अकाउंट से हम चार्ज कर देंगे. जब उसके पास पैसा आएगा करंट अकाउंट में तो वो उनको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली. तो एंट्री वुड बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वो लेके आया कैश में 8,000, और इनकमिंग पार्टनर न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, जितना वो कैश में नहीं ला पाए दैट वुड बी 2,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इंडिविजुअली इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है. अभी जो पीछे मैंने केस डिस्कस किया वहां पे मैंने आपको ये बताया कि वो पूरा का पूरा पैसा गुडविल का नहीं लाया कैश में, तो ये वाली एंट्री तो पास होगी ही नहीं, और ये वाली एंट्री अगर पास होगी तो क्या होगी एंट्री, इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. आगे देखिए, व्हेन गुडविल, देखिए ये जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर अगर आपके फॉर्म में आ रहा है तो कैश में गुडविल है, वो किसी एसेट्स के फॉर्म में भी गुडविल को लेके आ सकता है, फिर हम उस एसेट को सेल करके उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में. ठीक है, इट सोलली डिपेंड्स ऑन द existing partners. New and incoming partner may bring the assets valued to the
amount equal to his share of premium for goodwill. So what should be the entry? Entry would be जब आपने बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट किया था उसकी जगह पे आप उस एसेट अकाउंट को डेबिट कर दो, बिकॉज एसेट आ रहा है उस टाइम पे आपके पास। एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर वो कैपिटल भी एसेट्स के फॉर्म में ला रहा है तो, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अगर वो गुडविल का प्रीमियम जो है किसी एसेट्स के फॉर्म में ला रहा है। अगर कैश के फॉर्म में ला रहा था तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, अगर कैश में नहीं ला के वो आपको किसी एसेट्स के फॉर्म में ला रहा है तो हम उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके बाद जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो उसको हम एज इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड इट वुड बी वेरी सिंपल। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब मैं एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा है मैंने, अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे क्रिटिकल केस नहीं बन सकता है। Ram and Rahim are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. राहुल को उन्होंने एडमिट किया है, राहुल को वो 1/3 शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट में। राहुल 10,000 एज अ कैपिटल लेके आ रहा है और he is not in a position to bring any amount for his share of goodwill which has been valued at rupees 30,000, right? उसके हिस्से की गुडविल 30,000 उसको लेके आनी थी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बट वो लेके नहीं आ सकता कैश में, उसके पास इतना कैश नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। दो केसेस ये हैं कि व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, अगर बुक्स में पहले से कोई गुडविल नहीं है और नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाया तो क्या एंट्री होगी। दूसरा केस ये बोलता है कि अगर बुक्स में पहले से कोई गुडविल है और वो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाया तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, देखिए व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक, एंट्री क्या होगी भाई, वो कैपिटल तो लाया ना 10,000 रुपए, उसकी एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, राइट। वो कैपिटल लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश आ रहा है फॉर्म में और राहुल कैपिटल इज अ लायबिलिटी सो इट शुड बी क्रेडिटेड। उसके बाद उसके हिस्से की गुडविल कितनी कैलकुलेट हमने की थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल 30,000। इसको हमें बुक्स में तो दिखाना नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और एंट्री क्या होगी, अगर वो गुडविल कैश में ले आता तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बट यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आएगा ही नहीं क्योंकि वो गुडविल कैश में लाया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर का करंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट क्योंकि नए पार्टनर से ही वसूलेगा वो बाद में। ठीक है, टू राम टू रहीम कैपिटल, राम और रहीम में ये जो 30,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका दूसरा केस है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। देखिए आपके पास ऑलरेडी बुक्स में 15,000 की गुडविल है और नए पार्टनर को हमने बोला कि भाई तुम 30,000 की गुडविल लेके आओ, जो कि वो लेके नहीं आया। तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट आएगा, सबसे पहले तो वो कैपिटल की एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो वो कैश में लेके आया है। ठीक, उसके बाद हम वही वाली एंट्री पास करेंगे गुडविल वाली, बट यहाँ पे हमें करना यह है कि 30,000 गुडविल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, जिसमें से 15,000 गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दिखाई हुई है, तो ही जस्ट नीड टू ब्रिंग ओनली 15,000, रेस्ट 15,000 उसको लाना था जो कि वो नहीं लाया। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 15,000 की एंट्री पास करेंगे और 15,000 को हम यहाँ पे जो है हम उसके हिस्से की गुडविल कितनी रेज हम कर रहे हैं, सिर्फ 15,000 रुपए उसको देने हैं क्योंकि 15,000 ऑलरेडी बुक्स में गुडविल दिखाई हुई है। राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, 15,000 हैव्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। अब देखिए जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड थी बुक्स में उसको भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसको राइट ऑफ आप कैसे करेंगे, उसकी एंट्री मैंने आपको सेकंड केस में डिस्कस की थी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ रही है। हमेशा ये सबसे अलग केस है कि अगर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पे एक्चुअली ना इन्होंने बोला नहीं हमें कि हमें उसको एडजस्ट करना है, उसको हमें राइट ऑफ करना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली उसको क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डायरेक्टली उसको एडजस्ट कर दिया और उसके बाद उसकी हमने ट्रीटमेंट कर दी। ठीक है, हमेशा आपको ऐसे ही करना, अगर आपके गुडविल बुक्स में अपीयर है और आपको अगर उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हो आप, तो आपको यही केस अप्लाई करना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द लेटर टॉपिक्स।